आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं ईरान के साथ दोहा में कल मीटिंग तय है। इजलास की दरख्वास्त ईरान की जानिब से की गई है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा सिफारती और फौजी हिकमत अमली के नतीजे में ईरान के पास कभी एटमी हथियार नहीं होगा। उधर बीबीसी ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात के लिए स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर दोहा जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू करें। Iran, we don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. This is something that's very exciting to me. And if you bring the bill, and I'm going to let Lee explain exactly what it means, but it means a lot to people that own vehicles, cars in particular, but cars and anything else. It's going to save them a lot of money, and they're going to be able to do it themselves. Please. Mr. President, this is a presidential memo to the Environmental Protection Agency, a presidential memo supporting the freedom to fix. Americans have the freedom to fix their vehicle. President Trump insists upon it. We are not going to be going after people who are fixing their own vehicle like past administrations have. Additionally, we've been concerned, President Trump has been concerned about aftermarket parts, cheap knockoff aftermarket parts coming into the United States, harming small businesses, harming Americans. This presidential memo puts an end to it. Also, the only third-party certification for these aftermarket parts is CARB in California, a process that's backlogged and faulty. So we're going to break that monopoly, and no longer will CARB be the only third-party certifier for these aftermarket parts. Again, President Trump is insisting on fixing it. This presidential memo does that. President Trump was calling me up on a Saturday night when this idea first came to his head, and he says he wants to do a press conference right away to get this over the top. In February 2nd, we signed a right to repair for our farmers so that they can repair their tractors and their non-road equipment, and this is covering everyone else. I mean, think about it. It came to my attention because I noticed they were arresting people for fixing their car. They were arresting people for fixing it. That's not even believable. Anyway, so it's right to fix, and I think it's really common sense. If somebody wants to fix, some of these people are better mechanics than the mechanics in the shop. They're telling the mechanic in the shop how to fix their car or their truck. We signed the truck one a little while ago. So I'm going to sign this, and I'll be happy about it. We rule by common sense to a large extent. All right, Lee, good job. Thank you. Thank you, sir. Okay. Can you imagine that? They want to put you in jail if you fix your car. Thank you. तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का फॉक्स न्यूज़ का इंटरव्यू। कहा अमेरिका जंगबंदी से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। अमरीकी वक्त मुज़ाकरात के लिए दोहा जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिफारती हल के ख्वाह हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करेंगे। ईरान के लिए अमरीका के साथ एक बेहतर मुआहदा करना ही बेहतरीन रास्ता है। तिजारती जहाज़ों पर हमलों का जवाब सदर ट्रंप की हिदायत पर दिया गया। अमरीका अपने दिफा और कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। Iran has requested a meeting this week, so Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be flying to Doha for high-level meetings this week as we continue to discuss the memorandum of understanding. On the sidelines of those high-level talks will be the technical talks. Violence will be met with violence. As you mentioned, Brian, there were attacks on commercial vessels that the United States of America, directed by the president, responded to, and that will continue to happen, but we hope we don't see that. The president obviously wants to see the peace process play out. अमरीका और ईरान के तकनीकी वफूद बुध को अलहदा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में बताया मुज़ाकरात में कतर और पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा करेंगे। अमरीकी और ईरानी वफूद की कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से अलग अलग मुलाकातें होंगी। इनमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तकनीकी उमूर पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात का मकसद फ़रीक़ैन के दरमियान सिफारती पेशरफ्त के लिए तकनीकी सतह पर उमूर को आगे बढ़ाना है। लेकिन इसके बरक्स ईरान ने कल कतर में अमरीकी टीम से मुलाकात की तरदीद कर दी है। ईरानी नायब वजीर खारजा ने कहा है कि अमरीका से बराह रास्त बातचीत का कोई मंसूबा नहीं है। काजिम गरीबाबादी का कहना है कि कतर में अमरीकी तकनीकी टीम से मुलाकात नहीं कर रहे। कतर से मामूल की मुशावरत जारी है। दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात की तस्दीक नहीं कर सकते। अमरीका से सिफारती उमूर और मुशावरत का सिलसिला
इस वक्त 40 मुल्कों के जरिए जारी है। तारीख और मकाम तय होने के बाद तकनीकी मुज़ाकरात मुनासिब वक्त पर होंगे। अमेरिका से हालिया मुआहदा ईरानी अवाम के लिए बड़ी फतह है। कतर में मुंजमद $6 अरब के फंड जल्द ईरान को मिल जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत ईरान की तेल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर आयद पाबंदियां खत्म हो गईं। आयतुल्लाह ख़ामनाई के ऐलान के मुताबिक ईरान एटमी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं, बैनुल-अक़वामी बरादरी को यकीन दिलाते हैं एटमी सरगर्मियां तयशुदा पॉलिसियों के मुताबिक होंगी। ईरान के 3 शहरों तेहरान, क़ुम और मशहद में शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई की नमाज जनाजा और सोग की तैयारियां जारी हैं। ख़ामनई के साथ बेटी, बहू और दामाद नवासी की नमाज जनाजा भी अदा होगी। सोग की तक़रीबात में शिरकत के लिए बैनुल-अक़वामी मेहमानों की आमद का सिलसिला जुमे से शुरू होगा। तेहरान में 4 और 5 जुलाई को सोग की मरकजी तक़रीबात होंगी। तेहरान में 6 जुलाई को नमाज जनाजा का तारीख़ी इज्तिमा होगा। नमाज जनाजा में 1.5 से 2 करोड़ लोगों की शिरकत मुतवक्के है। तेहरान के मज़ाफ़ाती इलाकों में मेहमानों के लिए 800 से ज़ायद तालीमी इदारे रिहाइश गाहों में तब्दील कर दिए गए। क़ुम में 7 जुलाई को सोग की तक़रीबात होंगी। शहीद ख़ामनई की जसद खाकी को 8 जुलाई को नजफ़, करबला, काज़मीन और बगदाद ले जाया जाएगा। इराक़ में ताज़ियती तक़रीबात में लाखों शहरियों की शिरकत मुतवक्के है। 9 जुलाई को शहीद ख़ामनई की अलविदाई तक़रीब का इनेकाद किया जाएगा। उन्हें इमाम रज़ा के रोज़े मुबारक के अंदर सुपुर्द खाक किया जाएगा। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। पीपी ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आला सतह वफ्द में बिलावल भुट्टो भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म 3 से 4 जुलाई तक ईरान का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो की ईरानी सदर समेत दीगर कायदीन से मुलाकातों का भी इम्कान है। पीपी ज़राए ने बताया ईरान से वापसी पर बिलावल भुट्टो के दौरे गिलगित का शेड्यूल तैयार होगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तक़रीब हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। जंग बंदी के बावजूद गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान लबनान में 100 अफराद की शहादत और इसराइली हमलों का जारी रहना नाकाबिल कबूल है। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा जंग बंदी मुआहदे का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए और तमाम मामलात को सिफारती ज़राए से हल किया जाना चाहिए। وقف إطلاق نار يكون هناك يعني 100 شهيد في لبنان في هذه ال3 أيام، واستمرار الاعتداءات من قبل إسرائيل. يجب أن يكون هناك احترام للاتفاق ويتم معالجة الأمور بشكل دبلوماسي، والولايات المتحدة تقوم بجهد كبير الآن في المسار الدبلوماسي، ونتمنى يعني أن تسفر هذه الجهود بالنجاح. मुल्क में अगर कोई ऐसी जगह है जो महफूज नहीं है उन्हें बंद कर दिया जाए। कोयटा में शहीद किए गए अली मुर्तज़ा के वालिद की गुफ्तगू। कहा अली के दोस्त ने रात के सफ़र से मना किया। मेरी बहू ने दोस्त को कॉल करके बताया हमारे साथ ऐसा वाक़या हुआ है, अली शायद शहीद हो गए, मुझे भी 5 गोलियां लगी हैं, 5 घंटे हो गए कोई मदद को नहीं आया, आप आ जाएं। बलूचिस्तान हुकूमत राब्ते में है, सिंध हुकूमत को शायद पता नहीं। ताजिर मिनहाज गुलफाम ने कहा सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा 3 दिन गुजरने के बाद भी नहीं पहुंचा। कज़न ने बताया रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक वो तन्हा थे, कोई मदद को ना पहुंचा। मैयत एयर एम्बुलेंस के जरिए नहीं कारगो से लेकर आए। पुलिस हुकाम ने कहा नो गो एरिया है, सबसे पहले कुछ नहीं कर सकते। कराची में आज भी 2 ट्रैफिक हादसात में 3 अमवात। बल्दिया टाउन स्पार्को रोड के करीब कब्रिस्तान के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 30 साल का अब्दुल जब्बार और 8 साल के अब्दुल मजीद शामिल हैं। दोनों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे कि तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। अहले खाना के मुताबिक हादसे में जाँ बहक नौजवान की अगले माह शादी थी और घर में तैयारियां चल रही थीं। बल्दिया नेवल गेट के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कराची के सानिया गुल प्लाजा में 80 जीते जागते इंसानों की मौत का जिम्मेदार कौन? आग हादसाती करार। कराची पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। दुकानदार नेमतुल्ला और 11 साला बेटा हुजैफा मुलजिम नामजद। प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमज़ान भी मुलजिम नामजद। पुलिस ने तमाम मुलजिम मफरूर करार दे दिए, लेकिन साने से मुतालिक कई सवालों का जवाब अब तक सामने न आ सका। नए गुल प्लाजा में दुकानदार नेमतुल्ला और इनका 11 साला बेटा हुजैफा मुलजिम नामजद। गुल प्लाजा कमेटी के सदर
तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान को भी मुल्जिमान नामजद किया गया है। पुलिस ने तमाम मुल्जिमान को मफरूर करार दिया। प्लाजा में आग हादसाती थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। कराची पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान का हिस्सा नहीं बनाई गई। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आतिशजदगी के बाद मार्केट यूनियन की तरफ से इमरजेंसी इत्तला और मदद तलब नहीं की गई। बर वक्त गेट नहीं खुलवाए गए। तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को फोन करके बिजली बंद करा दी। अंधेरे की वजह से लोग इमारत के अंदर फंसे रहे। जिस स्पॉट पे बॉल्स और सिलेंडर लगे हुए थे हम लेके हम ऊपर भागे। हमने वहाँ उसको आग को बुझाने की कोशिश की पूरे तरीके से। फ्लावर की शॉप में आग लगी थी। इसको फुल हमने कोशिश की। थोड़ी देर इसको जो है वो थम जाती थी एकदम से, फिर एकदम वो शुरू होना हो गई ज़्यादा। जब पता चला कि भाई आग काबू में नहीं आ रही है तो पहली फुर्सत में मैंने के इलेक्ट्रिक पे कॉल करके ऑन द स्पॉट मैंने लोकल बंद करवाया। गोल प्लाजा में हंगामी हालात से बर वक्त निमटने के इंतजाम क्यों नहीं थे? इसकी निगरानी करने वाले महकमों की नाअहली क्यों नजरअंदाज की जा रही है? मुल्क के सबसे बड़े शहर की मसरूफ तरीन सड़क पर फायर ब्रिगेड के पास बहुत जल्द पानी क्यों खत्म हो गया? बर वक्त वाटर बाउजर का इंतजाम क्यों नहीं किया जा सका? सानहे के 6 माह बाद भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब तक सामने नहीं आ सका। रावलपिंडी में अडियाला जेल के 14 कैदी पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंक कर भाग गए। पुलिस 36 कैदियों को वैन में डालकर अदालत से वापस अडियाला ले जा रही थी। रास्ते में कैदियों ने हंगामा किया, एहलकारों पर हमला करके फरार हो गए। पुलिस इलाके की नाकाबंदी करके 4 कैदियों को पकड़ लिया, बाकी 10 की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है फरार होने वाले कैदी संगीन नौयत के मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद हैं। IG पंजाब राव अब्दुल करीम का वाक़े का सख्त नोटिस। एडिशनल SP हेडक्वार्टर्स पिंडी मुदस्सिर इकबाल को ओहदे से हटा दिया। SP हेडक्वार्टर्स राव मुदस्सिर इकबाल को हेडक्वार्टर्स लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। DSP हेडक्वार्टर्स इम्तियाज अहमद मुअत्तल लाहौर ऑर्डर करने का हुक्म जारी कर दिया गया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन सेक्टर 16 में फायरिंग। एक शख्स जाम भग 35 साल के गुलाम अली से झगड़े के बाद फायरिंग करने वालों को अहलिया ने फ़ोन करके बुलाया था। पुलिस का कहना है अहलिया फायरिंग करने वालों के साथ चली गई। मियाँ बीवी का कई रोज से झगड़ा चल रहा था। ऐनी शाहिद ने बताया खातून ने किसी को फ़ोन करके बुलाया। 3 मुल्जिम मोटरसाइकिल पर आए थे। गुलाम अली अहलिया और बेटे के हमरा रेस्टोरेंट से खाना खाकर वापस आ रहा था। चलती बाइक पर फिर झगड़ा हुआ। वाक़े की तफ्तीश जारी है। मकतूल के 9 साला बेटे का वीडियो बयान ARY न्यूज़ ने हासिल कर लिया। और मेरी अम्मी और हम लोग 3 दिन तीनों बंदे थे, ठीक है। खाना फिर हम लोग खाना खा के वापस आ रहे थे। फिर मेरी अम्मी को बोला और चलो बैठो। मेरी अम्मी बैठ गई और उसको गोलियां मारी। मेरे अब्बू को 3 किन्हों ने बोला बैठो? 3 लोग थे। वो तुम्हारी अम्मी को साथ लेके चले गए? तुम्हारी अम्मी के साथ गई है? खुद ही गई है? जबरदस्ती बिठा तुम्हारी अम्मी को? पता नहीं है। मुल्तान में गुर्बत का मारा बाप बेटे की लाश को कफन भी न दे सका। जवान बेटे की लाश चादर में लपेटकर कब्रिस्तान पहुंच गया। शहरी ने बताया कि माली तंगी के बायस कफन और कब्र के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुलिस ने अपनी जेब से रकम देकर कफन का इंतजाम कराया। पुत्र का उम्र इसकी 25 साल है। आप इनकी बहन है? इनकी बहन है? आप बहन है? ये सब लोग इनको दफन कर रहे हैं। अपनी मौत आप मरा।